الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. آج پاکستان کی تاریخ میں ایک عظیم ایسا دن ہے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پاکستان کے طول و عرض میں موجود تمام موالیان حیدر کرار کو متحد کر کے ان کی نمائندگی میں آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے سٹیج پر تشریف فرما ان تمام بزرگ علماء کرام کا اور ان تمام جماعتوں اور تنظیموں کا اور ان تمام ذاکرین اعظام کا جنہوں نے آج کے اس عظیم نمائندہ اجتماع کو کامیاب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آج کا دن ایک نکاتی ایجنڈے پر بات کرنے کا دن ہے. آج کا دن دشمن کو للکارنے اور اپنی صفوں میں اتحاد کے ذریعے سے دشمن کے جبڑے پر مکہ مارنے کا دن ہے. آج کا دن اختلافی موضوعات پر بات کرنے کا دن نہیں ہے. آج کا دن وہ ہے جس میں ہر ایک کو اپنے ڈومین میں رہ کر بات کرنی چاہیے, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. علماء کرام اپنے ڈومین میں, ذاکرین اعظام اپنے ڈومین میں, آج سب کا مشترکہ ایشو ولایت علی کا دفاع اور عزاداری سید الشہداء کے خلاف ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں اپنے امتیازات اور اختلافات کو ایک طرف رکھ کر متحد ہونے کا پیغام ہے. لہذا ایسی گفتگو, ایسے امور جن کا تعلق اس اجتماع سے نہیں ہے, اس اجتماع میں نہیں کرنی چاہیے. آج کا یہ اجتماع ذاکرین اعظام کو بھی اسی طرح اہمیت دے رہا ہے جس طرح سے علماء کرام کو. ذاکرین اعظام کا کام ذکر حسین اور دلوں کے اندر حسین ابن علی کی محبت اور عشق کو شعلور کرنا ہے, اور علماء کرام کا کام اس معاشرے کو دین کے مطابق چلا کر امام زمان سے متصل کرنا ہے. لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافی امور کو ایک طرف رکھیں گے تو پھر ابو جہل کی اولادوں کو شکست دے پائیں گے. اس وقت ہمارا مقابلہ ابو جہل اور ابو لہب کی اولادوں سے ہے. لہذا آپس کے ان امور کو چھیڑنا خود اپنی جگہ ایک غلطی ہے جس سے قوم کے اندر دوبارہ انتشار پیدا ہو. جہاں تک عقائد کا تعلق ہے, ہر شخص اپنے عقیدے میں آزاد ہے, لیکن یہ یاد رکھیے عقیدہ وہی ہے جو قرآن اور محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ ہمیں دے. وہی ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے, اس سے نہ باہر, نہ اس سے آگے اور نہ اس سے پیچھے. یہ ہمارا مشترکہ عقیدہ ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آج کا یہ اجتماع ہمیں جوڑنے کے لیے ہے, چونکہ دشمن نے اب جو وار کیا ہے وہ ایک ایسا وار ہے جس کو اس وقت شاید ہو سکتا ہے ہم اس کی گہرائی کا ادراک نہ کر سکیں. یاد رکھیے جو صورتحال اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم کے بعد مکہ اور مدینہ والوں نے روا رکھی, یہاں تک کہ
उमवियों के दौर में जिस तरह का सलूक अहलुल बैत के साथ किया गया, आज पाकिस्तान में शिया कायद के बनाए हुए पाकिस्तानियों के साथ वही सलूक रवा रखने की कोशिश हो रही है। ये जो इस तरह के बिल है, ये कायदे आजम के जानशीनों को इस मुल्क में आइसोलेट करने का बिल है, जिसके लिए कोई भी माई का लाल अगर कदम बढ़ाए तो एक भी शिया एक लम्हे के लिए भी न खामोश रह सकता है और न चुप रहेगा, आगे बढ़ेगा और हर सूरत में मुकाबला करेगा और हर दुश्मन के जबड़े पर ऐसा मुक्का मारेगा कि दुनिया याद करेगी कि पाकिस्तान के शिया वो है जिनकी रगों में अली इब्ने अबी तालिब का खून मौजूद है। इसलिए ये बिल अचानक नहीं आया, अचानक नहीं आया। गुज़श्ता इस पूरे अरसे में पहले ब्यूरोक्रेसी में से तशय्यो को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला गया, बाद में एजुकेशन से तशय्यो के अकायद, नजरियात और इस्लामी हीरोज के नामों को खुरच खुरच कर निकालने की कोशिश की गई और ऐसा निसाब मुरत्तब करने की कोशिश की गई जहां पर अहलुल बैत न हो, बाकी जो कुछ भी आए कोई बात नहीं। और अब उसका आखिरी मरहला यह है कि नामों से सहाबा के नाम पर और नामों से अहलुल बैत के नाम पर नारे खूबसूरत, टाइटल खूबसूरत, लेकिन उसके पीछे जो फिक्र है वो नजस भी है और डाकू भी है। जिस अंदाज में यह बिल पेश किया गया, ये चोर थे, डाकू थे। 380 की पार्लियामेंट में 8 बंदे, बाकी नहीं मौजूद, तो 8 बंदों का वो भी चोरी छुपे पेश किया गया बिल। चोरी का बिल है, पेश करने वाला सबसे बड़ा चोर है। उसी तरह से आपकी सेनेट में 100 बंदों की सेनेट में टोटल 25 बंदे, और उनको भी न बिल पढ़ाया गया, न दिखाया गया, न उनसे पूछा गया। सिर्फ ये कहा गया कि हम कहें तो तुम कहो लब्बैक और ओके। ऐसा बिल उसको पूरी कौम जूते की नोक पर रखती है, जूते की नोक पर रखती है। हम बेगैरत नहीं है। हमने इस पाकिस्तान के अंदर कम अज कम 26,000 बेगुनाह लाशें उठाई हैं। इस पूरे अरसे में 26,000 बेगुनाह लाशें उठाई हैं, लेकिन कभी कानून हाथ में नहीं लिया। लेकिन अगर इसको कानून कहा जाए तो ऐसा कानून हमारी जूतों की नोक पर है। इसको हम एक लम्हे के लिए कबूल नहीं कर सकते, एक लम्हे के लिए। इसलिए ये याद रखिए कि अभी से आसार नजर आ रहे हैं। कोई यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, कोई आखिर यजीद को अपने मुकद्दसात में शुमार करके फिर उसको रसूलुल्लाह के घराने का फर्द करार देता है। यानी ये आगाज है, आगाज। सैलाब जब आता है, एक जगह से अगर उसने बंद को तोड़ा, उसको अगर आपने वहीं पर बंद किया तो ठीक, अगर वहीं पर आपने बंद नहीं किया तो पूरी आबादी ज़ेरे आब आ जाती है। ये वही इब्तिदा है। अगर आप आमादा रहे तो कोई माई का लाल ऐसे किसी बिल पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। मैंने पूरे पाकिस्तान में गवादर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक जायजा लिया है। मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, मैं मुबालगा नहीं करता, आपको भी पता है, जिसने मेरी गुफ्तगू सुनी है, मैं मुबालगा नहीं करता। लेकिन याद रखिए, इस वक्त पाकिस्तान के हर इलाके में, हर महल्ले में, हर कूचे में, हर कस्बे में जहां पर भी अली वलीउल्लाह कहने वाला मौजूद है, वो सर देने के लिए तैयार है, लेकिन कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं, चूंकि वक्त कम है, मैं अपने मुहतरम कायदीन कराम, उलमाए आलाम, इन बुजुर्गों से ये गुजारिश करूंगा कि आज इस कौम को एक ऐसा लाए हमल दे
जिसके नतीजे में बातें न हो, नारे न हो, धमकियां न हो, ये करेंगे वो करेंगे न हो, कौम को टाइम दे, जगह बताए और कहे जब तक हमारे इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता उस वक्त तक हम घरों में वापस लौट कर नहीं जाएंगे। ये आज इंतहाई अहम दिया है। इतने बड़े बड़े जाकिरीन, नामवर जाकिरीन, नूरानी जाकिरीन और खिदमत हुसैन में हमेशा मशगूल जाकिरीन आज आपके साथ है। उनका भी दर्द वही है जो आपका है और आपका भी दर्द वही है जो उनका है। लिहाजा अब हमें तैयार होना चाहिए और मिना में 58 हिजरी में हुसैन इब्ने अली ने पूरे जजीरा नुमाए अरब से, आलम इस्लाम से जो 1000 मुमिनीन को बुलाकर उनके जिम्मे ये लगाया था कि मेरे अगले ऐलान का इंतजार करो और तैयारी पकड़ो, उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज अगर वारिसाने हुसैन ऐलान करे तो बताइए आप तैयार हैं? मैं सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछूंगा, घरों से निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे, इक़्तिदार के इर्द गिर्द घेराव करेंगे, इस्लामाबाद में बैठेंगे, जब तक इस नजस प्रोग्राम और साजिश को नाकाम नहीं किया जाता उस वक्त तक घर न लौटने का वादा करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।